Okay, so recording has been started. So for today's agenda, we will start with the overview of M365. We will discuss about these suites available in M365. उसके बाद we will take up to फिर हम देखेंगे how to create a trial subscription. Then we will start creating resources, mailboxes, start creating the components in Office 365. So ये 5 topic है that we are going to cover. Okay. So even before that, let me show you something. तो सबसे पहले Office 365 जानने से पहले, so most of you be anxious and curious to know what Office 365 and 365 is, formerly known as O365. So Office 365 is nothing but a suite of products. ठीक है, इसमें बहुत सारे products हैं, and this is SaaS. What is SaaS? So Office 365 is a SaaS offered by Microsoft. SaaS is nothing but software as a service. Okay, this is the terminology which we will use in cloud. Okay, so there are 3 types of offerings. Infrastructure as a service, then we have software as a service, and we have platform as a service. Okay, so ये EAS जो है ये आएगा आपको when we learn Azure. SaaS, I will explain what it is. I will also explain what is PaaS. So SaaS क्या है? Software as a service means the cloud provider will create a software. They will do the coding. They will have their infrastructure. They will have their own set of codes, programming platforms, and everything. As an end user, you will only get a service. You are going to get a service. The best example of software as a service is your emails. ठीक है, emails in the sense तुम्हारा हॉटमेल हो गया, ओके, जीमेल, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर? ईमेल सॉफ्टवेयर. So the company creates a software which is the purpose of the software is for sending emails, routing emails, and receiving emails. So as an end user, you are getting a software service, a mail service from the email provider or from the cloud provider. ठीक है. Another example is Teams. ठीक है, फिर तुम्हारा WhatsApp, Facebook, Instagram, ये सब क्या है? These are all the example of software as a service. Means your company is not owning that software. Okay, you are not responsible to maintain the hardware which is
hosting that software. You are not responsible to create a platform. You are not responsible to create a code for all this application. Everything is maintained, programmed, and provided by the cloud provider or the vendor. Okay. तो तुम्हारे को क्या मिलता है? ओनली सर्विस. So that is called as software as a service. ओके. एग्जाम्पल मैंने दिया था तुम्हारे को इसका, जो है ईमेल्स, ये सब. ठीक है. सो क्लाउड प्रोवाइडर कौन से है? वी हैव क्लाउड प्रोवाइडर लाइक वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एजर, फिर AWS और GCP है. ओके. तो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एक माइक्रोसॉफ्ट का जो बड़ा प्रोडक्ट है वो है M365. M365 is a suite of software as a service. Okay, तो M365 एक कलेक्शन ऑफ suites. Okay, मतलब क्या है? ये बंडल है. इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे. सो व्हेन लाइक इसमें आपको मिलेगा ईमेल सर्विस, इसमें मिलेगा टीम्स, इसमें मिलेगा आपको MS वर्ड मिलेगा. यू विल गेट यामर, यू विल गेट दिस थिंग शेयर पॉइंट, यू विल गेट वन ड्राइव. तो ये पूरा कलेक्शन है M365. उसमें हम जो सीखने वाले हैं दैट इज एक्सचेंज ऑनलाइन. ठीक है. बहुत सारे सर्विस जैसा टीम्स है, एक्सचेंज ऑनलाइन है, टीम्स है, फिर बाद में तुम्हारा शेयर पॉइंट है, देन तुम्हारा वन ड्राइव है. तो ये सब बहुत फेमस सर्विसेज है. दिस इज द बंडल और स्वीट्स ऑफ M365. तो विद इन दिस स्वीट्स वी आर गोइंग टू लर्न एक्सचेंज ऑनलाइन. ठीक है. तो इसमें कैसा है एक्सचेंज ऑनलाइन में? वी आर टेलिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर तेरा, ठीक है, प्रोग्राम तेरा, एप्लीकेशन तेरा, सब कुछ तेरा. आई वांट ओनली मेल सर्विस फॉर माय कॉर्पोरेट. ओके. सो उसके लिए हम लेंगे एक्सचेंज ऑनलाइन. अगर आपको टीम्स चाहिए तो आई विल टेल माइक्रोसॉफ्ट दैट आई वांट ए कोलैबोरेशन सॉल्यूशन एंड यू जस्ट प्रोवाइड अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू विच आई कैन कोलैबोरेट. तो क्या है? जैसा मेरे को चैटिंग करना है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना है, फिर चैनल्स बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, ठीक है, ये सब प्लानर बनाना है, तो ये सब टीम्स में मिल जाएगा. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ओके, सो इफ यू वांट दिस सर्विस यू गो ऑनलाइन एंड परचेज अ लाइसेंस. तो ये सब सर्विस के लिए आपको लगेगा लाइसेंस. आई विल शो यू हाउ टू परचेज फॉर द लाइसेंस. ठीक है. अब नाउ द थिंग इज, आप एक्सचेंज ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ये तुम्हारा M365 का एनवायरनमेंट है और इसमें एक्सचेंज ऑनलाइन आप यूज कर रहे हो. तो एक्सचेंज ऑनलाइन यूज करने के लिए आपको बनाना है यूजर्स, जो विच वी आर गोइंग टू डू इन द डेमो. और मैं आप लोग के साथ मैं मेरे आईडी शेयर करूंगा. सो यू विल यू आई विल गिव यू द URLs, आई विल गिव यू द ID. M365 सब्सक्रिप्शन का ID मैं दूंगा. You don't require that you are this subscription and all. And if you want to purchase your own subscription, then you can purchase, but it will be valid only for 1 month. So मेरे पास subscription है, so until you are comfortable, you can use that subscription to do some research in M365 and gets your hands dirty. Okay, so you can play around. It is a test subscription as a MCT trainer. I have that subscription for a year. Okay, तो मैं डेमो दिखाऊंगा. तो
and I will give you task. You have to create all those tasks in the M365 lab. Okay. So I was speaking that when you, after purchasing the license, you will have to create a users. Okay. Now in ideal scenario, क्या होता है? मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, इसमें एडी इंस्टॉल्ड है और इसमें मेरे पूरे यूजर्स यहाँ है, यूजर 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास पूरे 100 यूजर या जितने भी 1000 यूजर्स मेरे ये डोमेन कंट्रोलर में हैं, एंड विच वी लर्न इन all these chapters, which we all these sessions which we covered previously. So in all those sessions, we learned how to install domain controller, how to create users and all. So मैं यहाँ users नहीं बना. I am not going to create the users in M365. I don't want a separate user for domain for on-premises. This is on-premises. I don't want a separate set of users for on-premises and a separate set of users for my cloud environment. This is cloud. Okay, ये मेरा क्लाउड है और ऑन प्रेमिसेस है. तो मुझे ऑन प्रेमिसेस में कुछ यूज करना है, तो यहाँ पे कुछ यूजर्स है लेकिन इधर यूज करना है. आई वांट ऑल दिस यूजर्स टू यूज माय क्लाउड प्रोडक्ट. ये पूरे यूजर्स को मेरे क्लाउड प्रोडक्ट यूज करना है. क्लाउड प्रोडक्ट क्या है? एक्सचेंज ऑनलाइन, टीम, शेयर पॉइंट, वन ड्रॉप. ये मेरे ऑन प्रेमिसेस यूजर्स को ऐड करना है, लेकिन the on-premises Active Directory and this cloud application, this MS365 is designed in such a way, ये on-premises को नहीं पहचानता है और on-premises cloud को नहीं पहचानता है. ठीक है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं. ठीक है, क्लाउड बोलेगा भाई मैं नहीं पहचानता, I don't know who cloud is, who M365 is. I can only give service to the internal application that is hosted on premises. I don't know, I'm not bothered about cloud. और क्लाउड बोलेगा भाई मेरे को ऑन प्रीमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा ऐसे सिनेरियो? इन सच अ सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज, जैसा ये डोमेन कंट्रोलर है वैसे ही एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ रहेगा. ठीक है, और वो डोमेन कंट्रोलर आपको इंस्टॉल नहीं करना है. वो डोमेन कंट्रोलर कौन इंस्टॉल करेगा? माइक्रोसॉफ्ट. वो इंस्टॉल करेगा किधर? अपने क्लाउड में. कि अपने क्लाउड में ये माइक्रोसॉफ्ट ये वाला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है. ऐसे बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर जो है माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड में इंस्टॉल किया है. ऐसा एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक, ऐसा बहुत सारा क्लाउड में हजारों डोमेन कंट्रोलर और लाखों डोमेन कंट्रोलर्स ने इंस्टॉल किया है. और उसमें जब आप टेनेंट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें से एक टुकड़ा जो है ये आपको दे देगा और उसको उसने बोला है ये तुम्हारा डोमेन कंट्रोलर है एंड इट इज कॉल्ड एज योर एडी. तो M365 में वी आर गोइंग टू लर्न एज योर एडी, we are going to learn M365. We are going to learn how to sync these on-premises users from my on-premises Active Directory to Azure Active Directory. इसके लिए हमको we have to learn AD Connect. ठीक है, ये AD Connect टूल भी हमको इंस्टॉल करना है. और AD Connect कहाँ इंस्टॉल होगा? ऑन प्रीमाइसेस. So the two pieces of software that is required for migrating or syncing the user is
एक्टिव डायरेक्टरी एंड एडी कनेक्ट, ये दो चीज आपको ऑन प्रेमाइसेस में होना चाहिए, ये और ये दोनों ऑन प्रेमाइसेस में चाहिए। सो क्या होगा, दिस एडी कनेक्ट विल एंश्योर दैट ऑल योर यूजर्स आर माइग्रेटेड from your on-premises to Azure Active Directory. Once the users are migrated, you will have this similar set of users over here. User 1, 2, 3, 4, 5. ये पांचों यूजर्स आपको Azure AD में भी दिखेंगे. So technically there are two users. Okay, for every person there will be two accounts technically. लेकिन एज ए एंड यूजर वन को दो पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूजर वन यहाँ पर अगर पासवर्ड यूज करता है 1234, ही इज गोइंग टू यूज द सेम पासवर्ड इन एज्योर इन क्लाउड एनवायरनमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट नॉट ओनली द यूजर अकाउंट बट ऑल्सो द पासवर्ड इज सिंक्रोनाइज्ड। तो एडी क्या करता है, इट synchronizes user account and it also synchronizes password. There are various types of password synchronization available. Okay, so that password synchronization is altogether a different chapter which we are going to learn. But as of now, ये डायग्राम याद रखो, तुम्हारा ऑन प्रीमिसेस और तुम्हारे क्लाउड के एक्टिव डायरेक्टरी अलग अलग है। ऑन प्रीमाइसेस का एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ ऑन प्रीमाइसेस के एप्लीकेशन को ही सर्विस देगा और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी तुम्हारे एज्योर एप्लीकेशंस को सर्विस देगा। अभी जैसा मेरे को टीम्स में लॉगिन करना है, देन आई विल रिक्वायर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट। सो दिस इज एनवायरमेंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड एनवायरमेंट, जहाँ पर मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस डोमेन कंट्रोलर है और एज्योर एडी जो क्लाउड का डोमेन कंट्रोलर भी है। So this is hybrid environment. ठीक है। Now let me pull you the steps कि मैं कैसे think करूँगा. I will show it practically also, but let me pull the documents which I have prepared for you. As you already connect. तो सबसे पहले आपको अगर अकाउंट बनाना है तो दिस इज द यूआरएल, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट। तो वी हैव https://signup.microsoft.com, यहाँ पर जाओगे तो it will help you to take a subscription or purchase a subscription or try subscription, ठीक है। So it is like creating any account, जैसा you do a subscription for Hotstar or Amazon Prime or Flipkart या जो भी है आपको जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही स्टेप्स है। You go to signup.microsoft.com and you can create your own trial subscription which is free for 1 month। लेकिन इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एज्योर एडी कनेक्ट, ठीक है। तो एज्योर एडी कनेक्ट क्या करता है, ये तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस का एक्टिव डायरेक्टरी को क्लाउड के एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक करता है, ठीक है। सो दिस बेनिफिट्स आर ऑल गिवन। इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा ऑन योर डोमेन कंट्रोलर। देन इट इज अ सिंपल स्टेप आफ्टर लॉन्चिंग द एमएसआई और द एक्सी फाइल, आपको ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई द लोकेशन। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि ओके अकाउंट तो सिंक हो रहा है तो पासवर्ड भी सिंक हो रहा है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, so what are the types of password synchronization? So user account is synced as it is, but password is not synced as it is. It is changed to a certain value and then synchronized, because password
ऐसा इंटरनेट पे सिंक्रोनाइज करेंगे, so that is a potential vulnerability. Okay, so it is exposed, your password should not be exposed. So for that security reasons, the Microsoft has come up with a solution to migrate or sync the password using these various technologies. These are very secure. You can choose any one of them. The mostly and widely used password synchronization is federation with ADFS and password as synchronization and then password authentication. Okay, so I will explain in the subsequent sessions what those password synchronization are. So if I pull my this thing, so we have a separate chapter of types of password sync. So I will explain each and every password synchronization method. So ये सब interview questions है. Okay. बाद में this is very important. कनेक्ट टू एजर आईडी, यहाँ पर आपको आपका सब्सक्रिप्शन का ईमेल आईडी देना है, तो तभी जाकर आपका क्या होगा, ऑन प्रीमाइसेस सर्वर जो है वो तुम्हारे एजर एक्टिव डायरेक्टरी के सब्सक्रिप्शन में जाके सिंक होगा. और एल्स अगर इफ यू डोंट सप्लाई दिस, देन योर एजर दिस एडी सिंक विल नॉट नो कि तुम्हारा जो ये डोमेन कंट्रोलर्स के जो यूजर्स है उसको कहाँ सिंक करना है. ठीक है, ये तो डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पर 5 यूजर्स है, मेरे को तो सिंक करना है एज्योर एडी, लेकिन कौन से एज्योर एडी में सिंक करना है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे एज्योर एडी है. वो क्लाउड में जाके देखेगा, देयर आर लॉट ऑफ एज्योर एडी. ओके, सो एडी सिंक, एडी कनेक्ट विल नॉट हैव अ क्लू वेयर इन टू विच टेनेंट द यूजर्स हैज टू बी माइग्रेटेड. तो इसीलिए आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन, जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो मेंशन करना है, और ईमेल आईडी दैट हैज द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स. तो क्या होगा, इट विल गो एंड सिंक्रनाइज टू द प्रॉपर टेन. ना तो क्या होएगा, अभी टाटा वाला एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, ऐसा तो नहीं है ना उसके यूजर्स पूरे रिलायंस के एज्योर एडी में जाके सिंक हो जाएगा. नहीं, तो द टाटा विल हैव टू सप्लाई द हिज टाटा's credential to synchronize all the users to Azure Active Directory, Tata's Azure Active Directory. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे को ये सब अकाउंट जो फॉरेस्ट के अकाउंट्स देना है. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेरा डोमेन है tata.com, तो उसमें आई कैन टेल कि भाई कौन सा ओयू सिंक्रोनाइज करना है. आई डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज होल डोमेन. ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ एक डोमेन सिंक्रोनाइज करना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे मेरे एग्जांपल में आई हैव अ डोमेन कॉल्ड एज उल्वे, तो मुझे सिर्फ उल्वे के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना है, तो बाकी सब ऑन प्रीमाइसेस में रखना है. सो आई कैन चेक मार्क. ओके, सो यू हैव द ऑप्शन टू सिंक ऑल डोमेन्स एंड ओयूज, एंड यू हैव द ऑप्शन टू सिंक ओनली द सिलेक्टेड ओयू. तो फिल्टरिंग में तुम्हारे को मिलेगा डोमेन्स, या तो फिर ओयूज, या तो ग्रुप्स. तो यू कैन ऑल्सो सिंक्रोनाइज ग्रुप्स. ग्रुप इज नथिंग बट, मतलब एक ग्रुप में अगर कोई जितने यूजर्स है तो वो ग्रुप के यूजर्स ही सिंक्रोनाइज होंगे. तो यू कैन स्पेसिफाई द फिल्टर्स. तो फिल्टर में क्या क्या आता है, यू कैन migrate the whole OU, or you can synchronize the whole OU, and you can synchronize a specific, you can synchronize a whole domain, or you can synchronize a specific OU, or you can synchronize the specific groups. And then the fourth is attribute based filtering. So ये interview questions है, types of filters in AD Connect. So there are 4 types of filters. Group-based filtering, which means the member of the groups will be synchronized. Domain-based filtering, it means the whole domain, all the users belonging to the domain will be synchronized. OU-based filtering means only the user belonging to that particular OU will be synchronized. Attribute-based filtering. Attribute-based filtering क्या है? If I open my Active Directory server,
I will open my Active Directory users and computers console. तो यहाँ पर if I open my Active Directory users and console, so I can mention only this OU should synchronize or only this OU should synchronize. Now, what is attribute based filtering? Attribute based filtering का मतलब क्या है? जैसे अब ये यूजर है, आई विल से कि जो भी यूजर्स के अकाउंट में इस एड्रेस में सिटी में अगर मुंबई लिखा है, सिर्फ वो ही यूजर्स माइग्रेट सिंक्रोनाइज होना चाहिए. In that case, I can use this attribute based filtering. So what will happen? All the users in whose attribute there will be a filter, there will be an option of city as Mumbai, only those users will be synchronized. That is attribute based filtering. So in short, attribute based filtering will go to the users properties और वो देखेगा कि भाई ये नशाद है, इसके सिटी में मुंबई है, सो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा. Then this attribute based filter, it will go to the आकाश properties और यहाँ पर जाके एड्रेस में देखेगा यहाँ मुंबई तो नहीं है, तो it will not synchronize. Okay, so that is attribute based filtering. So city is just an example. You can also specify this thing, organization. I can say जिसके भी डिपार्टमेंट में सेल्स लिखा है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए. तो द एडी विल गो टू ऑर्गेनाइजेशन, इट विल चेक डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेल्स नहीं है तो यूजर टो को सिंक्रोनाइज नहीं करेगा. ओके, so that is the meaning of attribute based filtering. So this is interview question. How many types of filters are there in AD Connect to synchronize the user? So the answer is 4. Group based filtering, domain based filtering, OU based filtering and attribute based filtering. So ये सब steps है synchronization के लिए. So ये lab हम करेंगे screenshot के साथ. And I will show you how to synchronize and how to use this synchronization service manager. So let me start with the portal. If I go to this Office 365 में जाने के लिए आप सबको याद रखना है एक पोर्टल. ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पोर्टल और वो पोर्टल का नाम है office.com. ठीक है, office.com ये एक सिंपल पोर्टल याद रखना है आप. ठीक है, सो just telling hello Mohammed, welcome back. So since it has recognized me, मैं साइन इन करूंगा, स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट. तो ये मेरे कंपनी का अकाउंट से मैं लॉग इन हुआ हूँ. आई विल स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट. सो आई विल यूज let me use ये मेरा एक सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, तो सिर्फ आपको एक पोर्टल याद रखना है और वो पोर्टल का नाम है office.com. एक पोर्टल याद रख लोगे तो आपको सारे पोर्टल्स इसके अंदर मिल जाएंगे. ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू नेविगेट टू ईच पोर्टल्स, ईच एडमिन पोर्टल्स. तो यहाँ पर
तो आई हैव लॉग्ड इन टू माई ऑफिस पोर्टल, office.com पोर्टल में मैं मेरे अकाउंट से लॉग इन किया हूँ। एम मुस्तफ़ा @मैरी.com, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। आई एम द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस डोमेन, दिस इज द डोमेन ओन्ड बाय मी। ठीक है, ये डोमेन कैसा खरीदना है, कैसा आपको ऑफिस 365 में इंटीग्रेट करना है, ये सब चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इफ यू नोटिस, यहाँ पर देखो इन लेफ्ट साइड आपको ये 9 डॉट्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन, या तो ऑल एप्स में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज, मुझे जो है ये एडमिन जो आइकन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही एडमिन क्लिक करूंगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्टल जहां मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क काम करूंगा। दैट इज office.com के अंदर गए तो तुम्हारे को इसके बाद ये वाला पोर्टल याद रखना है। अगर नहीं भी रखोगे, यू विल गेट द admin icon in office.com. By clicking on that, based on your permissions, you will have access to this portal. Since I am the global administrator, मुझे ये portal खुल गया है। Okay, so I will give you the global admin or the exchange admin rights to all of you, and means I will share the username and password, so you people can visit all these portals and you can play around. तो यहाँ पर दिस इज एज्यूम कि ये एक प्लेन यू सब्सक्रिप्शन है, और यहाँ पर तुमको यूजर्स बनाना है। ठीक है, सो हाउ विल यू क्रिएट। ठीक है, सो इवन बिफोर दैट, क्रिएटिंग बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूजर, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ कि ये एडमिन पोर्टल में क्या क्या है। ये एडमिन पोर्टल में इफ यू गो टू शो ऑल, इफ यू गो टू बॉटम, देखो यू हैव एक्सचेंज एडमिन पोर्टल, यू हैव शेयरपॉइंट एडमिन पोर्टल, यू हैव टीम्स एडमिन पोर्टल, यू हैव एजर एक्टिव डायरेक्टरी पोर्टल। ओके, एंड ऑल एडमिन सेंटर्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारे एडमिन सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमको जो फोकस करना है वो है एक्सचेंज। ठीक है, क्लिक ओपन इन लिंक न्यू टैब। तो दीज आर माई वेरियस सब्सक्रिप्शन जो मेरे पास है ऑफिस 365 का। तो आई विल यूज माई दिस वन which I am using for students. ओके, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मेरे एक्सचेंज का पूरा सब्सक्रिप्शन, मेरे एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारे को तीन चीज मिल जाएगा एक पोर्टल में जाओगे तो। पहला आपको याद रखना है office.com। office.com के अंदर यू विल गेट द एडमिन पोर्टल। एडमिन पोर्टल के अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी में आप सीख रहे हो, तो मतलब जो टेक्नोलॉजी में आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, यू कैन यूज दैट फ्रॉम दिस विद इन दिस पोर्टल। सो इफ आर एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर, यू क्लिक ऑन एक्सचेंज और ये एक्सचेंज का पोर्टल ओपन करेगा। ठीक है, इफ यू आर शेयर पॉइंट एडमिन, क्लिक ऑन शेयर पॉइंट, इफ यू आर टीम्स एडमिन, क्लिक ऑन टीम्स। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी व्हाट आई कैन डू इन एडमिन सेंटर। और ये पोर्टल कौन सा पोर्टल है जानने के लिए यहाँ पर याद रखना है। देखो ये जो चीज है ना, आप देखोगे तो ये जो हेडिंग से आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा पोर्टल है। सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पोर्टल। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 जस्ट होम पोर्टल, एंड दिस इज एक्सचेंज एडमिन पोर्टल। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर शेयर पॉइंट में क्लिक करूंगा, सो यू विल गेट दी सकता से
So यहाँ पर if I click over here and I will have the Exchange portal, and if I click SharePoint, I will have this SharePoint portal. So every portal has its own heading. So let me see कि मैं we will focus on the Microsoft 365 admin portal and the Exchange admin portal. दोनों में फर्क क्या है और दोनों में क्या क्या चीज हम कर सकते हैं. एंड इफ आई क्लिक ओवर हियर यूजर्स, ठीक है, यूजर्स के अंदर हमारे पास है एक्टिव यूजर्स, कॉन्टैक्ट्स, गेस्ट यूजर, डिलीटेड यूजर्स. तो डिलीटेड यूजर्स में जो मेरे जितने भी डिलीटेड यूजर्स है वो दिखेंगे. एक्टिव यूजर्स में ये मेरे पास इतने यूजर्स हैं, तो ये सारी चीज यहाँ दिखेंगे. एंड आई कैन फिल्टर based on the admins या तो एग्जाम्पल लाइसेंस यूजर्स. ठीक है, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लाइसेंस्ड यूजर्स है. स्मॉल यूजर्स. तो यहाँ पर अगर मेरे को देखना है कि मेरे पास अनलाइसेंस यूजर्स कितने हैं, तो मैं अनलाइसेंस यूजर्स क्रिएट करूंगा. एंड व्हाट इज लाइसेंस, हाउ टू परचेस लाइसेंस, हाउ टू असाइन लाइसेंस, ये सब चीज मैं दिखाऊंगा. बाय डिफॉल्ट मेरा जो सब्सक्रिप्शन है, मैंने 25 लाइसेंस खरीदे हैं. आई मीन 25 लाइसेंस बाय डिफॉल्ट मुझे मिल गया है एज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर. आई एम एलिजिबल फॉर 25 लाइसेंस. उसमें से मैंने 6 लाइसेंस मैं यूज कर चुका हूँ. एंड आई हैव द ऑप्शंस टू इनेबल 19 मोर लाइसेंस. मीन्स 19 यूजर्स को मैं लाइसेंस दे सकता हूँ. ओके, सो व्हाट इज द ऑप्शन नाउ. ये 365 एडमिन सेंटर में आप आ गए हो, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है ऐड एन यूजर. ठीक है, ये बिलिंग विलिंग डिटेल्स में जाओगे ना, तो तुम्हारे को परचेज सर्विस मिलेगा. यहाँ से तुम लाइसेंस में देख सकते हो कि कितना लाइसेंस है आपको. मेरे पास देखो 2 लाइसेंस है. 365 E5 लाइसेंस है मेरे पास. ठीक है, और पावर ऑटोमेट फ्री लाइसेंस है ये. ठीक है, तो वो मैं तो अभी तो सिर्फ 365 लाइसेंस ही यूज करता हूँ. परचेज सर्विसेज में आई कैन गो एंड परचेज वेरियस लाइसेंसेस. ठीक है, तो यहाँ से मैं जाकर लाइसेंस खरीदूंगा. आई कैन, मेरे को जो भी लाइसेंस चाहिए, सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड आई कैन परचेज दोस लाइसेंस. एंड दिस विल गिव द इंफॉर्मेशन कि कितना होगा एक एक लाइसेंस का. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ मैंने 2 लाइसेंस खरीदा है. मतलब 2 लाइसेंस स्वीट्स खरीदा है. इसमें मेरे पास ये जो है 365 E5 लाइसेंस खरीदा है. उसमें मेरे को उसने 25 लाइसेंस दिया है. उसमें मैं 6 यूज किया हूँ. एंड अवेलेबल लाइसेंस इज 19. सो इफ आई गो टू माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, गो टू बिलिंग सेक्शन एंड गो टू लाइसेंस सेक्शन, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितने लाइसेंस. ओके, आपको एग्जाम्पल के लिए अभी मैं तुम्हारे को कंपनी का दिखाता हूँ. अब ये मेरा जो है खुद के कंपनी है, टीमफिल टाउन बोल के मेरा जो कंपनी है उसका है. गो तो ये शो ऑल एंड गो तो बिलिंग सेक्शन लाइसेंस. तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरा कंपनी है, कंपनी ने इतना लाइसेंस का स्वीट्स लिया है उसने. ओके, एंड इफ आई जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें मेरे को सिर्फ E5 लाइसेंस था, ये वाला जो E5 लाइसेंस था. बट यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा अकाउंट है मेरा, उसमें मेरा लाइसेंस अलग है. ठीक है, तो यहाँ पर एज ए एक्टिविटी प्रीमियम में मैं एक लाइसेंस यूज कर चुका हूँ. आई हैव 99 लाइसेंस. तो यहाँ जाके आपको परचेज में जाकर ये सब लाइसेंस खरीदना पड़ेगा. ओके, सो आई विल स्विच बैक टू माई ओरिजिनल जरीमरी टेनेंट.
और दिस इज द वे वेयर यू कैन सी कितना लाइसेंस है, कितना लाइसेंस आप यूज कर सकते हो, ये सब यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर दी करेक्ट एजेंडा, इफ आई गो टू एक्टिव यूजर्स, सबसे पहला काम है मेरा यूजर्स बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मैंने यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी में बनाया ऑन प्रीमाइसेस, वैसे ही मैं यूजर्स जो है यहाँ भी बना सकता हूँ। यहाँ जो मैं यूजर्स बनाऊंगा वो जाकर बैकग्राउंड में कहाँ बनेंगे, वो जाकर बैकग्राउंड में बनेंगे मेरे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गो टू एक्टिव यूजर्स, आई विल गो टू ऐड ए यूजर्स। तो ये वैसे ही है जैसा फर्स्ट नेम दो, यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम देता हूँ यूजर 11। ठीक है, डिस्प्ले नेम भी यूजर 11 रखता हूँ, यूजर नेम भी यूजर 11 रखता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करूँगा, मैं रखूँगा ठीक है, आई विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड आई विल से नेक्स्ट। इसके बाद ये पूछेगा आपको क्या उसको लाइसेंस देना है, मैं बोलूँगा नहीं। अगर मैं लाइसेंस देता हूँ तो उसको ना ये इतने सारे एप्लीकेशन फोकट में मिल जाएंगे। अगर ये मैं लाइसेंस नहीं सिलेक्ट करता हूँ तो उसको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। ही कैन ओनली लॉग इन टू कंप्यूटर, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर मैं इसमें करता हूँ तो मेरे को देखो ये दो एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर मैं ये वाला ई फाइल लाइसेंस देता हूँ तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक्टिव डायरेक्टरी मिलेगा उसको, इफ यू गो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मिल जाएगा उसको। ठीक है, एंड इफ आई गो फर्दर यामर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ उसको जो है अपने एक्सचेंज ऑनलाइन ये भी मिल जाएगा उसको। ठीक है, मेल बॉक्स सर्विस मिल जाएगा, टीम्स मिल जाएगा, यामर मिल जाएगा, वन ड्राइव भी मिल जाएगा उसको। ठीक है, और इसमें से अगर मेरे को कुछ सिर्फ उसको एक्सचेंज ऑनलाइन देना है तो आई विल अनचेक दिस, और मैं बोलूँगा भाई ये लाइसेंस में तेरे को सिर्फ एक्सचेंज ऑनलाइन ही मिलेगा। तो उसको मैं बोलता हूँ कि भाई सिर्फ एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ वो बोलता है भाई मेरे को टीम्स भी दे दो। उसको मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं आई विल सर्च फॉर दिस टीम्स, सिलेक्ट टीम्स। ठीक है, और नेक्स्ट कर दूँगा एंड देन आई विल से नेक्स्ट। एंड ये देखो यहाँ पर रोल नो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस, मतलब वो एक प्लेन यूजर है। अगर आईटी का बंदा है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जाकर एडमिन सेंटर में, अगर वो एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेटर है तो एक्सचेंज बना दूंगा, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको सारा मतलब टोटल एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर हेल्प डेस्क का एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ पासवर्ड रीसेट करने का काम है उसको, तो आई विल सिलेक्ट हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सिमिलरली फॉर शेयर पॉइंट टीम्स और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो कोई आईटी का बंदा ज्वाइन हुआ है और वो समझो डेस्कटॉप का बंदा है जिसका काम है सिर्फ पासवर्ड रीसेट करना या तो छोटे मोटे काम करना, तो आई विल चेक, आई विल प्लेस एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और आई विल से नेक्स्ट। उसके बाद फिनिश है। ठीक है, उसके बाद उसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। ठीक है, उसे क्लोज कर दो। अब इफ आई गो आई कैन सी माई यूजर्स ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लाइसेंस मेरे को मैनेज करना है। जैसा मैंने उसको गलती से लाइसेंस दे दिया, मेरे को लाइसेंस नहीं देना था, तो मैं फिर भी आई हैव द ऑप्शन, ओके, आई कैन डू दैट फॉर द यूजर आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट। ओके, इट इज नॉट लाइक अकाउंट बनाने के टाइम में आपने दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। यू कैन क्रिएट द यूजर एंड देन यू कैन गेट रीड ऑफ लाइसेंस। ओके, मैं यहाँ पर निकालूंगा और सेव चेंजेस करूँ। अब एक्सचेंज एडमिन सेंटर में आप देखो उमर सैयद नाम का ये यूजर है, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। क्यों? बिकॉज उमर सैयद को मैंने लाइसेंस नहीं दिया है। अब यूजर लेवन देखो, यूजर लेवन यहाँ है
और उसको लाइसेंस है, मतलब उसको मैंने एक्सचेंज का लाइसेंस दिया है। तो आई विल गो एंड आई विल सी कि भाई यहाँ पर आया क्या। यस, यूजर 11 आ गया है। तो क्या है बोलने का मतलब, एक्सचेंज एडमिन सेंटर में सिर्फ वो ही यूजर्स दिखेंगे मेल बॉक्स में जिसको लाइसेंस दिया गया है। अब मैं अगर यूजर 11 से लाइसेंस निकाल दूंगा तो क्या होगा, वो अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन Microsoft 365 Admin Center and Exchange Admin Center. In short, I want to say that the Microsoft 365 Center will have details of all the active users, and the Exchange Admin Center will only have the details of all the users with licenses, with Exchange license. Okay. तो आपको लैब मैं यूजर नेम दूंगा एंड आई विल गिव यू अ टास्क। ये जो आपको लैब है आपको करना है, तो लैब फॉर आप लोग के लिए ये लैब है। आपको ये पोर्टल में जाना है। यू हैव टू क्रिएट अ यूजर। दो यूजर बनाओ, विथ एंड विदाउट लाइसेंस। क्रिएट अ मेल बॉक्स। यूजर क्रिएशन विदाउट लाइसेंस। क्रिएट अ यूजर विथ मेल बॉक्स। ठीक है, ये चीज आपको लैब में करना है। I will explain what I'm trying to tell. ठीक है। तो मेल बॉक्स क्रिएट करने के लिए, मेल बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप कहाँ जाओगे? सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोग को। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर माई क्वेश्चन। अगर आपको एक्ट यूजर क्रिएट करना है तो कौन से पोर्टल में जाओगे, और मेल बॉक्स क्रिएट करना है तो कौन से पोर्टल में जाओगे? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Please unmute yourself. You can answer the question or you can specify in the chat. For creating a user, we will go to admin portal, and for mailbox, we go to exchange portal. Okay. Right? Okay, so Riaz has said कि तुम्हारे को यूजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है एडमिन पोर्टल में, और मेल बॉक्स क्रिएट करना है तो आपको जाना है एक्सचेंज पोर्टल में। Anyone else would like to answer? Asia Uh, has said admin portal. Okay. Yeah, yeah, Mohan. we can create users from admin portal itself. Uh, However, once we assign the licenses, okay, so that user will be available in Exchange admin center. Exactly. So the answer is correct. It is admin portal. ठीक है, तो तुम्हारे को यूजर क्रिएट करना है या मेल बॉक्स क्रिएट करना है, ये दोनों को आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से ही कर सकते हो। ओके, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। अगर मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर में गया एंड इफ आई गो टू मेल बॉक्स, यहाँ पर तुमको दिख रहा है कुछ क्रिएट ए मेल बॉक्स? नहीं दिख रहा है। यू हैव द ऑप्शन टू ऐड अ शेयर्ड मेल बॉक्स। शेयर्ड मेल बॉक्स क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, बट यू डोंट हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ यूजर मेल बॉक्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेल बॉक्स: यूजर मेल बॉक्स, शेयर्ड मेल बॉक्स एंड इक्विपमेंट मेल बॉक्स और रिसोर्स मेल बॉक्स। ठीक है, तो ये जो भी यूजर मैंने बनाया ना, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया, सिर्फ शेयर्ड मेल बॉक्स मैं यहाँ पर बनाया मैंने। लेकिन ये सारे यूजर मेल बॉक्स मैंने बनाया माइक्रो 365 एडमिन सेंटर से। व्हाई? बिकॉज व्हाइल क्रिएटिंग द यूजर, जब मैंने लाइसेंस सिलेक्ट किया था तो उस टाइम में उसका मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द लाइसेंस यू हैव असाइन टू दैट यूजर। सो द करेक्ट आंसर इज एडमिन पोर्टल। ठीक है।
This is the portal where you can create user and where you can create mailbox. तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर में क्या बनता है? शेयर्ड मेलबॉक्स और रिसोर्स मेलबॉक्स. रिसोर्स मेलबॉक्स में देयर आर रूम मेलबॉक्स एंड इक्विपमेंट मेलबॉक्स. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इसीलिए डाला था कि यूजर क्रिएशन विदाउट लाइसेंस, क्रिएट अ यूजर विथ मेलबॉक्स, ये दोनों के लिए तुम्हारे को एडमिन पोर्टल ही लगेगा. उसके बाद आई विल गिव यू अ टास्क, क्रिएट अ शेयर्ड मेलबॉक्स. और जब आप लोग बनाओगे ना ये यूजर मेलबॉक्स, शेयर्ड मेलबॉक्स, तो यूज योर नेम. इन दैट वे आई विल एबल टू डिफरेंशिएट कि किसने बनाया है. ठीक है. नहीं तो क्या, अगर जेनरिक नाम यूज करोगे तो गोइंग फॉरवर्ड मैं क्या करूंगा, मैं एक हफ्ते के बाद सारे डिलीट कर दूंगा. ठीक है. सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी यूजर मेल बॉक्स बना रहा है ये पोर्टल में, एंश्योर दैट यू यूज योर नेम. एग्जाम्पल, अगर रियाज यूज कर रहा है तो रियाज, यू विल यूज योर नेम रियाज एट jarimoney.com. और ये आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस सब्सक्रिप्शन, आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर सब्सक्रिप्शन. जो मेरा स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से एक सब्सक्रिप्शन रखा है. ये वाला कहाँ 76 HP3 है, वो सब्सक्रिप्शन मैं दूंगा तुम्हारे को. ऑप्शंस तो सेम ही है. वेदर यू गो टू एनी पोर्टल, ऑप्शन सेम ही रहेगा. खाली तुम्हारा ये @zedimari.com नहीं रहेगा. It will have a 76 HPC3 dot on Microsoft.com. That subscription I have precisely purchased for students to play around. Okay. So I was speaking about the lab. You will create a shared mailbox. You will create a resource mailbox. उसके बाद आप लोग को ये है लैब है, assign permissions to a shared mailbox. ओके. उसके बाद तुम्हारे को एक लैब है, क्रिएट अ ग्रुप. उसके बाद आपको और एक लैब देता हूँ, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट. ओके. ये इतना लैब आप लोगों को करना है एंड यू विल हैव टू कम टुमारो विद दिस लैब. टुमारो विल बी अ लैब फिक्स सेशन. ओके. ये और ये मैं अभी एक एक बता देता हूँ आपको. मैंने बता दिया कि पोर्टल में कैसा जाना है, आपको मैंने बता दिया कि उसके अंदर एडमिन पोर्टल में कैसा जाना है, उसके बाद आपको यूज़र कैसा क्रिएट करना है, लाइसेंस कैसा देना है. उसके बाद मैंने बता दिया कि मेल बॉक्स कैसा बनाना है. नाउ आई विल शो यू शेयर्ड मेल बॉक्स. शेयर्ड मेल बॉक्स होता क्या है एंड हाउ विल यू क्रिएट. रिसोर्स मेल बॉक्स क्या है एंड हाउ विल यू क्रिएट. उसके बाद परमिशंस कैसा देना है, टाइप्स ऑफ परमिशंस क्या है ये भी बताऊंगा. फिर मैं बताऊंगा ग्रुप क्या है एंड ऑल्सो आई विल शो यू व्हाट आर व्हाट. ओके. सो अब ये बताने के बाद आपको ये सब लैब इजी पड़ जाएगा बताने के लिए. सो इफ आई गो टू माय दिस एडमिन सेंटर, I can create a user, I can create a mailbox for the user by assigning the license. But if I go to Exchange Admin Center, I cannot create a shared mailbox from here. I can create shared mailbox from Exchange Admin Center. क्यों? Because ये shared mailbox license के साथ नहीं आता है. Shared mailbox is free. ठीक है. So that is the reason it is not integrated with the admin portal. It is part of your Exchange administration. तो shared mailbox क्या है? Okay, so if you read this definition, email can be sent to and from the name and email address of the shared mailbox rather than an individual. After you create a shared mailbox, you can add members who can read and reply to email. So shared mailbox क्या है? Shared mailbox एक ऐसा mailbox है जिसके बहुत सारे owners होंगे. यूजर मेलबॉक्स कैसा है? उसका ओनर सिर्फ एक ही आदमी होगा.
आमिर बादशाह है तो आमिर बादशाह इज दी ओनर, ओके, मुस्तफा है तो मुस्तफा इज दी ओनर। शेयर्ड मेल बॉक्स क्या है, वो एक कॉमन मेल बॉक्स है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर केयर, हर कंपनी का कस्टमर केयर होता है, लेकिन दैट इज नॉट ओन्ड बाय वन यूजर। ठीक है, जो भी एजेंट लॉग इन करेगा सुबह सुबह, एग्जाम्पल के लिए आपका कोई तुम्हारा फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर है, तो आप फ्लिपकार्ट में कुछ कस्टमर केयर को ईमेल करते हो, तो वो कस्टमर केयर जो है इट इज एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। कोई बैंगलोर में यूज करेगा, कोई दिल्ली में यूज करेगा, कोई मुंबई में यूज करेगा। ओके, so it is a mailbox that is used by multiple users. That is the difference between a shared mailbox and a user mailbox. ठीक है, यहाँ पर इसका भी मैं नाम देता हूँ कस्टमर केयर। ठीक है, so that is the operation is already be used। ठीक है, तो मैंने कस्टमर केयर ऑलरेडी बनाया, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कस्टमर केयर 2। ठीक है, तो क्या होगा, एक कस्टमर केयर शेयर मेलबॉक्स बन गया। तो लॉजिकली मीन्स इन लेमन टर्म आई कैन से शेयर मेलबॉक्स इज अ मेलबॉक्स व्हिच इज ओन्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, लेकिन टेक्निकली क्या है मालूम है, एक शेयर मेलबॉक्स के साथ एक लॉगिन अकाउंट नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसा मैंने यूजर लेवल बनाया, यूजर लेवल क्या है, यूजर मेल, इसके साथ एक अकाउंट एसोसिएटेड। ठीक है, यू कैन सी यूजर 11@zarimari.com, एक अकाउंट एसोसिएटेड है विद अ यूजर मेल बॉक्स। मीन्स ये यूजर 11 क्या कर सकता है, ही कैन लॉग इन टू द सिस्टम, कंप्यूटर में लॉग इन भी कर सकता है प्लस ईमेल भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन शेयर्ड मेल बॉक्स क्या है, a shared mailbox can only log into email, he cannot log into the system। ठीक है, जैसा कंट्रोल ऑल डिलीट नाम मार के यूजर नेम पासवर्ड देने का है, तो ये कस्टमर केयर के इससे मैं नहीं लॉग इन कर सकता हूँ। ओके, सो कस्टमर, सो ये शेयर्ड मेल बॉक्स क्या है, शेयर्ड मेल बॉक्स डज नॉट हैव अ लॉगिन अकाउंट, वो लॉगिन अकाउंट उसके साथ नहीं रहता है। शेयर्ड मेल बॉक्स कैन नॉट लॉग इन टू सिस्टम, अ यूजर मेल बॉक्स कैन log into the system as well as email, a shared mailbox can only have access to email। ओके, एंड शेयर्ड मेल बॉक्स का कोई ओनर नहीं रहता है डेडिकेटली, इट विल हैव अ मल्टीपल ओनर, बट यूजर मेल बॉक्स के साथ एक डेडिकेटेड ओनर होता है। ठीक है, एंड टेक्निकली इन फॉर द टेक्निकल लैंग्वेज, कस्टमर केयर का जो शेयर्ड मेल बॉक्स मैंने बनाया उसका जो एडी अकाउंट है वो डिसेबल रहेगा। ठीक है, और यूजर मेल बॉक्स का जो एडी अकाउंट है वो इनेबल रहेगा। एंड इफ आई सी, इफ आई मैंने जो शेयर्ड मेल बॉक्स अभी जो मैंने बनाया, इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो इट विल गिव ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो बताएगा कि भाई इसका नाम ये है, ये सब है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं इसको ओनर कैसे असाइन करूँ, हाउ विल आई असाइन। तो यहाँ पर आपको जाना है डेलीगेशन में, और यहाँ पर आपको देना है परमिशन। तो मैं यहाँ पर इसको एडिट करूँगा, और मैं यहाँ पर ऐड मेंबर करूँगा, और यहाँ से मैं यूजर्स उठाऊंगा। आई विल से कि इसको आमिर बादशाह शेख को एक्सेस होना चाहिए, इसको मुस्तफ़ा को एक्सेस होना चाहिए, एंड यूजर 11 को एक्सेस होना चाहिए। से तो क्या होगा, कस्टमर केयर 2 के मेल बॉक्स को किस किस को एक्सेस रहेगा, क्या मैं भी यूज। तो अभी मैं अभी इसमें क्लिक करूंगा, एंड इफ आई गो टू डेलीगेशन, और मैं आई कैन सी कि दैट 2 यूजर्स हैव एक्सेस। अभी मैं ऐड मेंबर करके, यू कैन सी
I cannot provide access to this shared mailbox because the shared mailbox will not be accessible by a shared mailbox. It will be accessible only by a user account. The user level for some reason it was assigned permission. तो मैं 3 जन को परमिशन असाइन कर रहा हूँ, लेकिन वो परमिशन सिर्फ 2 ही जन को दे रहा है. तो दिस इज मैं आपको ये और एक चीज देता हूँ, एक टास्क देता हूँ तुम लोग को कि परमिशन assign permission to shared mailbox and then try to understand why permission is not assigned to the to all users specify. मतलब क्या, मैं 3 जन को दे रहा हूँ परमिशन, लेकिन मेरे को उसमें 2 ही जन दिखा रहा है. तो वो क्या है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. थोड़ा गूगल करो और मेरे को बताओ कि परमिशन देने के बाद भी परमिशन नहीं लग रहा है. ओके, आई विल शो यू अगेन. मैं एडिट में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर ऐड मेंबर्स कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ यूजर लेवल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ. यहाँ पर परमिशन तो लग गया, लेकिन अगेन आई गो और जाके देखता हूँ तो नहीं, परमिशन नहीं लगा है. परमिशन से आमिर और सॉरी ओके यूजर लेवल को लग गया है. वो जो तीसरा यूजर था उनका है. ये यूजर्स को मैं परमिशन दे रहा हूँ तो क्यों नहीं लग रहा है. सो यू हैव टू डू गूगल एंड से, मतलब यू विल हैव टू शो मी ऑल द पॉसिबिलिटीज कि अगर किसी यूजर्स को परमिशन नहीं लग रहा है तो व्हाट इज द रीजन. तो मेरे को पॉसिबल रिसर्च करके बताओ कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू असाइन परमिशन टू सम यूजर्स एंड यू आर एबल टू असाइन परमिशन टू फ्यू यूजर्स, नॉट ऑल. ओके. So coming back to our original topic, a shared mailbox is a mailbox which is not owned by a particular user. It is owned by multiple users. So to assign permission on a shared mailbox to multiple users, you have to go to the users and then you have go to delegation and then you will have to select read and manage and full access. ठीक है, ये एक टाइप का परमिशन है. सेकेंड टाइप ऑफ परमिशन है सेंड एज. तो सेंड एज में जाके मैं जाऊंगा ऐड मेंबर्स, मैं वापस में ऐड करूंगा अमीर बादशाह और यूजर 11 एंड आई विल आल्सो सिलेक्ट मुस्तफा. ठीक है, अभी मैं वापस जाऊंगा और डेलीगेशन में और यहाँ पर दूंगा. ठीक है, सिर्फ यूजर 11 लगा है. वाई आई एम नॉट एबल टू असाइन टू अमीर बादशाह एंड आई विल आल्सो यूज तो 2 यूजर सिलेक्ट कर. So I will go with delegation और 2 यूजर ही लगा. ठीक है. So it can the one of the reason is it can be a replication issue. मतलब 5 मिनट में आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया तो यू जस्ट ट्रबल शूट और मेरे को बताओ कि क्यों नहीं आया. जब मैंने परमिशन दिया है 3 जन को, लेकिन उसमें मेरे को सिर्फ दिख रहा है 2 ही जन. Why it is so? Okay. Now मैं वापस डेलीगेशन में जाता हूँ. मैंने देखा कि मैंने 2 यूजर्स को फुल एक्सेस दिया है और 2 यूजर्स को सेंड एज परमिशन दिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंड एज परमिशन एंड फुल एक्सेस. फुल एक्सेस रीड एंड मैनेज फुल एक्सेस में क्या है, ये जो यूजर्स है जिसको परमिशन है वो क्या कर सकते हैं, वो ये शेयर मेल बॉक्स ओपन कर सकते हैं, मेल्स पढ़ सकते हैं. सेंड एज में कैसा है, वो ये मेल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं एंड दे कैन सेंड ईमेल्स फ्रॉम दिस अकाउंट. ठीक है, वो ये वाले जो एग्जाम्पल है यूजर 11 और मुस्तफा, ये दोनों को परमिशन है और आमिर को नहीं है. ठीक है,
तो यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट में यहाँ पर मैं मेरे खुद को निकाल देता हूँ। तो send as means a user can send mails accessing this shared mailbox. So अब ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई विल गो टू माय आउटलुक। यहाँ पर मैं मेरा आउटलुक ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ and I will say use another account, but better I will my mmustafa@serimarie.com. तो ये मेरा मेल बॉक्स, मैंने क्या ओपन किया, ये जो मेरा अकाउंट है mmustafa@serimarie.com, ये यूजर मेल बॉक्स है, इसको मैंने ओपन किया। ये आउटलुक है, दिस इज आउटलुक। ओके, ये मेरे कंपनी का ईमेल आईडी है, को ये, तो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, बरोबर। अब मेरे को शेयर्ड मेल बॉक्स में एक्सेस है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कस्टमर केयर टू, और डेलीगेशन में जाके मैं देखता हूँ कि अ, मुस्तफ़ा को एक्सेस नहीं है। तो मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं बोलूँगा, इधर क्लिक करूँगा एंड आई विल से ओपन अनदर मेल बॉक्स, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा कस्टमर केयर टू @zarimarie.com। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम फॉलोइंग द स्टेप्स टू ओपन the mailbox of to open a shared mailbox, and this is the same procedure to I am so to show it to again, I will log into my Outlook, I will go to my profile and I will say open another mailbox। तो मैं यहाँ पर कस्टमर केयर का ईमेल आईडी देता हूँ। तो ये क्या है, ये स्टेप्स है टू ओपन है शेयर्ड मेलबॉक्स। ओपन करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, नहीं भाई तुमको एक्सेस डिनाइड है। क्यों एक्सेस डिनाइड है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर डेलीगेशन में एक्सेस नहीं है, तो मेरे को एक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू ऐड मेंबर्स, ठीक है। नाउ मुस्तफा हैज एक्सेस, फिर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, इट विल नॉट ओपन। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ओपन अनदर मेल बॉक्स, तो होपफुली अगर एप्लीकेशन हो गया है तो आई शुड बी एबल टू, नहीं हो गया है सो लेट मी यूज अनदर मेल बॉक्स कस्टमर केयर डेलीगेशन में। यहाँ पर फुल एक्सेस इसको मुस्तफा को है, ओके। पर मैं कस्टमर केयर @zarimarie.com ये ओपन करता हूँ, आई विल गो हियर, ओपन अनदर मेल बॉक्स and you can see I am able to open the first shared mailbox। सेकेंड वाला मैं क्यों नहीं ओपन कर सका, क्योंकि उसको मैंने अभी परमिशन दिया है, इट विल टेक सम टाइम टू रेप्लिकेट। ओके, so this is what this is a shared mailbox। okay? यहाँ पर जो भी मैं shared mailbox को मेल करूंगा यहाँ पर दिखेगा। तो सेंड, इसमें क्या है, अगर मेरे को सेंड एज राइट्स है तो मैं मेल कर सकता हूँ। तो आई कैन मेल टू एनीवन, आई कैन मेल टू यूजर 11, आई कैन से दिस इज अ टेस्ट मेल फ्रॉम shared mailbox via Mustafa। ठीक है, तो मेल चला गया। तो क्या बोल रहा है ये,
could not send the following message. More details. You don't have permission to send message from this mailbox. So क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर डेलीगेशन में मेरे को सेंड एज परमिशन नहीं है, मेरे को रीड एंड फुल एक्सेस परमिशन है. समझ गए? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंड एज परमिशन एंड रीड एंड फुल परमिशन. अगर कोई यूजर आपका मेल पढ़ सकता है, अगर सेंड नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या है? उसको सेंड एज परमिशन नहीं है. अगर उसको वो परमिशन देना है तो एडिट करो, ऐड मेंबर्स पे क्लिक करो, देन सिलेक्ट द यूजर जिसको करना है एंड से कंफर्म. So after the replication happens, you will get rid of this error. So I purposely created this error to show you that full access is not equal to full access. Full access is, what do you mean by full access? Full access का मतलब है you can read emails. आप यहाँ पर मेल रीड कर सकते हो, you send नहीं कर सकते. ठीक है? तो shared mailbox में तुम्हारा जो है assign permission to shared mailbox. Try to understand why permission is not assigned to all users specified. Okay. So assign permission to shared mailbox. इसके बाद कौन सा परमिशन देना है तुम्हारे को? Send and full permission ये देना है. तो दोनों के बीच में फर्क क्या है ये भी बताना चाहिए. नेक्स्ट इज I will go here and I will create a resource mailbox. तो resource mailbox क्या है? It is like a shared mailbox. ठीक है, वो shared mailbox के जैसे ही है, लेकिन इसमें तुम कैलेंडर डेलीगेशन दे सकते हो. resource mailbox में you can delegate permission और कैलेंडर मीटिंग रूम्स के लिए. ये होता है जैसा कंपनी में कॉन्फ्रेंस रूम है, वो कॉन्फ्रेंस रूम बुक करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक रूम मेल बॉक्स मैं ये कर दूंगा. मेरा कंपनी है और एक एक फ्लोर में मेरे 10-10, 20-20 कॉन्फ्रेंस रूम है और कोई भी जाकर उसमें बैठ जाता है. मेरे को वो कॉन्फ्रेंस रूम ब्लॉक करना है फॉर स्पेसिफिक टाइम. तो मैं क्या करूंगा, एक रूम मेल बॉक्स क्रिएट करूंगा और मैं पब्लिश कर दूंगा. मैं बोलूंगा भाई ये रूम मेल बॉक्स है, जिसको भी शेड्यूल करना है ये रूम मेल बॉक्स के कैलेंडर में जाओ और उसको ब्लॉक करो. ओके, तो ऐड रूम मेल बॉक्स. यहाँ पर मैं डालूंगा कॉन्फ्रेंस 1, मेरा कॉन्फ्रेंस रूम 1. ठीक है, इसका ईमेल आईडी भी दे दूंगा कॉन्फ्रेंस 1. नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट. उसके बाद ये कैपेसिटी कितने लोग बैठ सकते हैं ये सब ऑप्शनल है. ऐसे नेक्स्ट, अलाउ रिपीटिंग मीटिंग्स. ओके, डिफॉल्ट छोड़ दूंगा 15 डेलीगेट. ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट डिक्लाइन मीटिंग रिक्वेस्ट. ये क्या है? अगर मेरे को ये रूम को 3 से 4 बजे तक बुक करना है और ऑलरेडी किसी ने बुक कर दिया तो उसको डिक्लाइन हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज बुकिंग डेलीगेट. मैं स्पेसिफाई करूंगा, स्पेसिफाई यूजर्स whom you want to accept decline meetings manually. मतलब क्या है, एक डेडिकेटेड बंदा होगा जो उसको ये मेल जाएगा कि भाई ये रूम इतने बजे से इतने बजे के लिए बुकिंग के लिए आया है, सो डू यू अप्रूव. ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुस्तफ़ा शुड अप्रूव, तो मैं उसका नाम यहाँ पर डाल दूंगा. तो ये मुस्तफ़ा क्या करेगा, ये जो कॉन्फ्रेंस रूम मेल बॉक्स है इसको अगर कोई भी रूम बुकिंग करेगा तो क्या होगा, मुस्तफ़ा को एक मेल जाएगा कि यूजर 11 हैज. तो ये कॉन्फ्रेंस रूम बुकिंग में क्या होगा, व्हेन आई क्रिएट अ कॉन्फ्रेंस रूम मेल बॉक्स and if I choose a delegate to accept the meeting, what will happen? This delegate will send an intimation or an email that user 11 is looking forward to book this conference room for this particular time. Do you approve? Okay, तो वो बोलेगा हाँ मैं अप्रूव करूंगा, तो उसको वो रूम बुक हो जाएगा. ऑटोमेटिक में क्या होएगा, नो नीड अप्रूवल फ्रॉम एनीवन. ओके, तुम्हारे को मैन्युअली मतलब अप्रूव करने की जरूरत नहीं है. वो जाएगा अपने कैलेंडर में, देखेगा 3 से 4 बजे तक ये रूम खाली है तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा.
So I am not going to include any user. I will select automatic approval and I will select next and I will say create. Okay. तो ऑटोमेटिकली ये जो है तुम्हारा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा. क्रिएट होने के बाद इट विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर. ओके. एंड वंस इट इज क्रिएटेड हम चेक करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो यूजर मेल बॉक्स क्या है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेल बॉक्स. यूजर मेल बॉक्स, shared mailbox and resource mailbox. User mailbox kya hai? A user mailbox is used by some person. Okay. The user mailbox has a user login account associated, which means the user can log into the system and can also access emails. Shared mailbox kya hai? Shared mailbox एक ऐसा mailbox है जिसके साथ यूजर अकाउंट एसोसिएटेड नहीं है. Shared mailbox is used only for accessing emails. And shared mailbox doesn't have a dedicated user. It can be used by multiple users at the same time. ठीक है. रिसोर्स मेल बॉक्स क्या है. रिसोर्स मेल बॉक्स क्या है. वो रिसोर्स मेल बॉक्स एक रूम मेल बॉक्स है और या इक्विपमेंट मेल बॉक्स है जिसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हो मीटिंग्स. ओके. और उसको मेल भी सेंड कर सकते हो. तो रिसोर्स मेल बॉक्स को अगर तुम्हारे को परमिशन देना है तो कहाँ पर जाओगे. मैनेज डेलीगेट्स. यहाँ पर जाकर आप परमिशन दे सकते हो. ठीक है. कौन सा परमिशन दे सकते हो. आमिर बादशाह को जैसा मैंने फुल एक्सेस, सेंडर एंड सेंड ऑन बिहाफ, ये 3 परमिशन दे सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ ध्यान से देखिए. सेंडर शेयर्ड मेल बॉक्स के पास कौन सा परमिशन था. 2 परमिशन, सेंडर एंड फुल परमिशन. जबकि shared mailbox can be assigned full and sender permissions, but a resource mailbox can be assigned full permission, send on behalf and send as permission. ठीक है. We quote it. ठीक है. तो शेयर्ड मेल बॉक्स को 2 ही परमिशन लगेगा, फुल परमिशन एंड सेंड एज परमिशन. रिसोर्स मेल बॉक्स को कौन सी परमिशन लगता है. रिसोर्स मेल बॉक्स को 3 परमिशन लगता है, फुल परमिशन, सेंड एज परमिशन और ये जो तीसरा परमिशन है सेंड ऑन बिहाफ. ये सेंड ऑन बिहाफ क्या है. जब ये रिसोर्स मेल बॉक्स से कोई मेल सेंड करेगा तो वहां पर लिख कर आएगा कि दिस मेल हैज बीन सेंड by this resource mailbox on behalf by this user on behalf of this resource mailbox. For example, Mustafa is sending a mail via a resource mailbox called as conference room. तो उसमें ऐसा लिख के आएगा this mail has been sent by Mustafa on behalf of conference room 11. तो send on behalf में कैसा है, जो रिसिपेंट है उसको मालूम पड़ेगा किसने मेल किया है. और सेंड परमिशन में क्या है, जो रिसिपेंट है उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि किसने मेल किया है. उसको ऐसा लगेगा कि शायद मेल बॉक्स से ही वो मेल आया है. ओके. तो तुम्हारा जो लैब है असाइन परमिशन टू शेयर मेल बॉक्स, फिर असाइन परमिशंस टू रिसोर्स मेल बॉक्स. ठीक है. उसके बाद क्रिएटर ग्रुप, क्रिएटर कॉन्टैक्ट. ठीक है. सो ये जो 2 चैप्टर है क्रिएटर ग्रुप, क्रिएटर कॉन्टैक्ट, ये हम कल के लिए रखते हैं ड्यूरिंग द लैब फिक्सिंग सेशन. But try to create a group and create a contact, and tomorrow come up with your labs and make me understand that what all things you have done
अगर तुम लोग कहीं पे फंस गए हो तो मेरे को बताना। तो ये मैं शेयर करता हूँ लैब तुम्हारे को, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये तुम्हारे लिए लैब है, ठीक है। office.com पोर्टल में जाओ, एडमिन पोर्टल में जाओ, यूजर क्रिएट करो विदाउट लाइसेंस, यूजर क्रिएट करो विद लाइसेंस, दैट मीन विद मेल बॉक्स, शेयर मेल बॉक्स बनाओ, रिसोर्स मेल बॉक्स बनाओ, परमिशंस लगाओ, ठीक है। और रिसोर्स मेल बॉक्स में भी परमिशन लगाओ। एंड परमिशन क्या रहेगा, सेंड ऑन बिहाफ एंड फुल परमिशन। उसके बाद लैब है तुम्हारा ओपन शेयर्ड मेल बॉक्स। ये भी मैंने बताया था कैसा ओपन करना है। इसके पहले मैं लॉग इन टू आउटलुक वाया यूजर मेल बॉक्स, ठीक है। एक यूजर मेल बॉक्स जो बनाओगे ना उस पर लॉग इन करो, और ये सेंड ऑन बिहाफ जो परमिशन जो है, जो यूजर आप बना रहे हो उसी को परमिशन दो, ठीक है। फिर आउटलुक में जाओ, एंड देन फ्रॉम आउटलुक यू ट्राई टू ओपन दिस शेयर्ड मेल बॉक्स एंड रिसोर्स मेल बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। और कुछ एरर आता है तो मेरे को बता देना, ठीक है। और ये जो ये जो इसका जो एडमिन है, ये जो पासवर्ड मैं तुम्हारे को शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर ये अकाउंट है, ये जो है तुम्हारा ग्लोबल एडमिन है, ठीक है। तो कैसा आप पोर्टल में जाओगे, एड office.com, वहाँ पर जो यूजर नेम डालोगे, ये पासवर्ड के लिए मेरे को मैं ग्रुप में डाल दूंगा पासवर्ड, ओके। लेट्स नॉट पुट इट इन द रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ग्रुप में डाल दूंगा, वही पासवर्ड यूज करके तुम्हारे को ये पोर्टल में लॉगिन करना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद ये सारे स्टेप्स तुमको करना है, ठीक है। ये 10 चीज आपको लैब में करना है, एंड आई विल शेयर दिस टू यू सो वी कैन कंक्लूड द सेशन। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है देन दे कैन, you can unmute yourself and you can ask the questions. Anyone has any questions? So if no one has any question, then we can wind up. I hope this session was informative and you people have enjoyed the session. The recording will be sent to you via WhatsApp group. Go through the recording and you can use my recording to create this land. Okay. So until then, bye everyone. Assalamu alaikum. Meet you tomorrow.